Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 103. 8th of January 1994, Waiz at Fort Haj Ahmad Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الأخيار. حق سو حقیقت سے بندے جنہیں کمائی اس دل بھی کر ہوئی روشنائی. حق سو حقیقت بندے جنہیں کمائی اس دل بھیتر ہوئی روشنائی. اللہ گن تیرا یا گن تیرا صاحب گن تیرا یا شاہ اوگن بہت ہمیرا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی علی محمد. زندہ رہو. ساری دنیا کے اندر ہم اسماعیلی لوگ جب جماعت خانے کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں، بہت سی دعائیں مانگتے ہیں. اس میں ایک دعا یہ ہوتی ہے، یا مولا ہم کو حقیقت سمجھ دے. ہم بہت دفعہ چیزیں مانگتے ہیں، بولتے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ارادے سے جان کے بوجھ کے سمجھ کے سوچ کے جب ہم خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتے ہیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے حضرت امام اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ تم اپنی دعا جو عربی زبان کے اندر ہے اس کے میننگ بھی سمجھو، اور دعا پڑھتے پڑھتے ہم ان لفظوں کے اوپر جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں ہم اس کا مطلب بھی سمجھیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے ہمارے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود، مانگو وسیلہ اپنی مصیبتوں میں اپنے مولا کا کہ جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے. جب ہم یہ چیزیں سمجھ کے پڑھیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے تمام آدمیوں کے گھروں میں الیکٹریکل چیزیں ہیں. یہ دیکھو سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کی بیٹری کے ٹرمینل کے اوپر میں رکھ دوں تو یہ بند ہو جائے گا، کیونکہ کرنٹ کا فلو سٹاپ ہو جائے گا اور یہ کاغذ اس کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی. بالکل اسی طرح جب ہم کوئی چیز نہیں سمجھتے اور بول رہے ہیں تو ہماری سمجھ اور ہمارے الفاظ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کرنٹ فلو نہیں ہوتا. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا دل بیدار ہو جاتا ہے، یعنی بیدار کا مطلب جاگ اٹھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے کوکا کولا مانگا. اب اس کے سامنے بوتل کھول کے کوکا کولا اس کو دیتا ہے، وہ پی لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی
कोका कोला लाते लाते खुद खोल के पहले से लाए और पहले खुद चख लेवे और ये देख लेवे, तो क्या ये पिएगा? हाँ, अगर वो आड़ के पीछे रूम के अंदर थोड़ा सा पी के ले आवे तो ये पी लेगा, क्योंकि इसको शक नहीं। मगर जब वो आंखों से देख लेवे कि इस आदमी ने कोका कोला पी के फिर मुझे दी है, तो वो नहीं पिएगा। क्या फर्क है दोनों में? उसने देखा है, अब उसको ये यकीन है इस बात का। जब उसने नहीं देखा तो उसको कोई यकीन नहीं। हमारा जो यकीन है, हमारा जो बिलीफ है, अगर उसके अंदर कोई भी दराज पड़ गई यानी क्रैक पड़ गया तो वो यकीन नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हकीकत का मतलब रियलिटी। और हम ये समझते क्या खुदाया, हम तो हकीकती समझते, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि हकीकती समझ क्या है? हमें ये चीज का पता होना चाहिए। मोमिनो, हमारा इस्माइली मजहब सारे इस्लाम को अगर एक बदन मान लेवे, इस्लाम एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, तो मैं मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार का आपको फरमान सुनाता हूं कि जो उसने एक तालिका भेजा था 1952 या 3 के अंदर, दार एस सलाम के अंदर। मौला फरमाया कि इस्माइली फेथ इज लाइक ए ब्रेन इन द बॉडी ऑफ इस्लाम। इस्लाम अगर एक बॉडी है तो इस्माइली फेथ उसका ब्रेन है। बॉडी 200 रत्तल की होती है, 150 मान लो, 200 मान लो। ब्रेन कितना है? 8 साढ़े 8 अंश का। हमारा जो ये अपर ब्रेन है, जो हमारे फ्रंट में है, यानी हमारी पेशानी के अंदर है, फोरहेड में जो ब्रेन है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ये 8 साढ़े 8 अंश का छोटा सा लम्ब है। मगर ये जो 8 साढ़े 8 अंश का है, ये सारी खुदा की क्रिएशन में जो कुछ है वो सब इसमें है। कि सदरदिन कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, खुदा की जितनी क्रिएशन के अंदर यूनिवर्स में जो कुछ है वो पिंड है, वो तुम्हारे अंदर है। यहाँ पिंड से मतलब बॉडी, मगर हमारे हार्ट के अंदर के, हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर के, किडनी के अंदर नहीं, क्योंकि सेंसेस जो हैं तो वो ब्रेन में है। 1.5 रत्तल का यानी 1.5 पाउंड का हमारा लोअर ब्रेन है कि जो हमारे पीछे है। ये लोअर ब्रेन जो है, इसमें मोटर है, इसमें नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर पावर हाउस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं और हजारों इसके अंदर से वायरें निकल के, जिनको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमारे सारे बदन के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ये जो हमारा लोअर ब्रेन है, ये कलर के अंदर जरा लाइटर है, ग्रे नहीं, मगर इसमें अकल नहीं, इसमें समझ नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें इंटेलिजेंस नहीं। जो कुछ भी है वो फ्रंट के अंदर आधे रत्तल का ये ब्रेन है कि जो 200 रत्तल की काया से वो ज्यादा कंट्रोल करने वाली आला दर्जे की इम्पोर्टेंट चीज है। और ये हकीकत है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो लॉबीज हैं, अलग अलग लॉबीज के, जिसको आज तक भी साइंस कंप्लीटली हार्नेस नहीं कर सकी। बाज आदमी ये कहते हैं, क्योंकि ये चीजें गिनी नहीं जा सकती, महज गेस वर्क होता है। बाज साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसके अंदर 30 बिलियन सेल्स हैं। 30 बिलियन सेल्स हमारे अपर ब्रेन के अंदर हैं और हर एक सेल एक पावर हाउस की तरह काम करता है। मैं आपको यहाँ कोई मेडिकल चीजें बताने के लिए नहीं आया, लेकिन दुनिया के तमाम शास्त्रों में, दुनिया के अंदर जो मजहब के स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर किसी न किसी हद तक फिजिकल साइंस का जिक्र किया गया है। हमको हमारे पीरों ने एक किताब लिख के हमको ऐसी बहुत सी चीजें बताई। 600 बरस पहले गुरु सदरुद्दीन ने किताब लिखी, उसका नाम है गिरभावली। गिरभावली का मतलब यह है कि वो चीज कि जो छुपी हुई है,
इसी में से गर्भ निकला। औरत जब भी हामिला होती है तो कहते हैं गर्भवती हुई, यानी उसके अंदर कोई चीज छुप गई। प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं वो नजर नहीं आती जब तक कि उसकी डिलीवरी न हो गए। 20 दिन की ये बुक 40 पेज की है, लेकिन अगर उसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो 400 पेज भी शायद पूरे न होंगे नक्शल के अंदर। और उसमें है क्या? उसमें यह है कि खुदा ने सृष्टि यूनिवर्स किस तरह क्रिएट किया और क्यों क्रिएट किया। फिर जब ये बॉडी के ऊपर आते हैं तो बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीजें जिनसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ केमिकल एक्शन है। जब भी केमिकल बैलेंस खराब हो जाता है तो जुदी जुदी किस्म की बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां केमिकल एक्शन और रिएक्शन की वजह से है। अगर हमारा बैलेंस ठीक है, केमिकल बैलेंस, तो हम बिल्कुल परफेक्ट हालत में रहते हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे एप्रेटिस के अंदर, हमारे कैलकुलेटर्स के अंदर छोटी छोटी बैटरियां हैं। ये बैटरी सेल AA 1.5 वोल्टेज है इसमें, लेकिन अंदर क्या है? केमिकल सॉल्यूशन है। इसलिए वो केमिकल सॉल्यूशन की वजह से इसकी पोलैरिटी बन जाती है, माइनस है प्लस है। हमारे बदन के अंदर भी 22.5 वोल्टेज है। ये सेल में तो 1.5 वोल्टेज है, लेकिन हमारे एक जवान आदमी के बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी बॉडी में 22.5 यानी 22.5 वोल्टेज की हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करती है हमको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज समझ आने से हमको सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में रास्ते आसान हो जाते हैं। किस चीज का एक्शन रिएक्शन पैदा करता है और क्या करता है वो हमें समझ आती है। ये हमारे पिछली तरफ कानों के दोनों तरफ थोड़ी सी उभरी हुई हड्डी है। इधर हमारा ब्रेन जो एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा स्विम करता रहता है। हमारे ब्रेन के चारों तरफ पानी है। वो पानी है ऐसा पानी नहीं लेकिन लिक्विड है। ये जो फ्लूइड है वो भी केमिकल है, उसके अंदर ब्रेन रहता है। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी एक जुदी किस्म का सॉल्यूशन है। तो हमारे ब्रेन का सॉल्यूशन, सेरेब्रल सॉल्यूशन, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सॉल्यूशन दोनों मिलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब भी इस जगह हमारे पीछे कानों के दरमियान जहां केमिकल फैक्ट्री है, हकीकत में जो कि हमारा लिवर है वो भी एक केमिकल फैक्ट्री है, मगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, इनसेन हो जाता है। उसको फिर राइट रॉन्ग का पता नहीं लगता। उसकी नजर में वही चीज होती है कि जो उसके दिल में आती है, बाहर की हकीकत का उसे कुछ पता नहीं चलता। ये तो एक फिजिकल बात है। यही चीज मेंटली होती है। जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी केमिकल से चलती है, जिस तरह हमारा तमाम एक्शन, खाना पीना, हजम प्योरली केमिकल एक्शन के ऊपर है, इस तरह से एक सुपर मैटर की तरह हमारा जो माइंड है, माइंड मैटर नहीं है मगर मैटर में से पैदा होता है, यानी ब्रेन में से पैदा होता है। और किस तरह खुदा उसको पैदा करता है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और यह मिस्ट्रीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। दुनिया के अंदर आए, खा पी के गुजर गए और हमने पता भी नहीं लगाया कि खुदा ताला ने ये ऐसी बड़ी क्रिएशन की। अरे मुझको खुदा ने क्रिएट किया तो मैं क्या हूं? अगर इंसान को अपनी हकीकत का पता चल जाए तो उसकी नजर के सामने नूर के पर्दे उठ जाए। इंसान के अंदर वो सब कुछ है जो सारी क्रिएशन के अंदर है। इस्माइली मजहब का जो एसेंस है तो वो ये है कि हम खुद को समझें, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। इस्माइली मजहब ने इस्लाम के तमाम दूसरे फिरकों को लीड किया है। ये इस्माइली मजहब है जिसको हिस्टोरियंस ने और दूसरे उलमाओं ने बातुनिया कहा है। बातुनिया इसलिए कि हम लोग खुदा की मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं। हम लोग खुदा की
छुपी हुई बातों के भेद को समझते हैं, हम खुदा ताला की हकीकत को जानते हैं, इसलिए हमारा नाम बातनिया पड़ गया। एक जबरदस्त आलिम इस्लाम के अंदर पैदा हुआ। मुसलमानों ने और गैर मुसलमानों ने इस आदमी के ऊपर हजारों किताबें लिखी और उसकी फिलॉसफी के ऊपर आज भी लिखा जा रहा है। इंग्लिश में भी उसके लिए बहुत लिटरेचर है। और वो मुसलमानों का इमाम गजाली एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है। जब उसने इस्लाम की स्टडी शुरू की, उसको कहीं से जवाब न मिले और वो जवाब उसको इस्माइली मजहब में मिले, वो इस्माइली बन गया। मगर इस्माइली जब बन गया तो उस जमाने के खलीफा ने उसका मुशारा बंद कर दिया। मुसलमानों ने गालियां निकाली, मार भी पड़ी, और इस ख्याल से कि अगर वो इस तरह से आइसोलेट हो जाएगा तो वो अच्छी तरह से इल्म की खिदमत नहीं कर सकेगा। वो वापस सुन्नी हो गया और एलानिया उसने कह दिया, अनाउंस किया कि मैंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो इस्माइली हुआ या नहीं हुआ। मुझे कहने का मकसद ये था कि उसने बहुत कोशिश की, ग्रीस में जाके ग्रीक फिलोसफी पढ़ी, हिंदुस्तान भी गया, दुनिया की तमाम जितनी भी चीजें उसके हाथ में आ सकी, मगर उसको अगर सॉल्यूशन मिला, सेटिस्फैक्शन मिली तो इस्माइली मजहब में से मिली। क्योंकि हमको इस्माइली मजहब के अंदर वो हकीकतें बताई जाती हैं कि जो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सदरदीन की एक छोटी सी किताब गिरबावली 40 पेज की, उसके अंदर पीर ने हमको अंदर की हकीकतें जाहिर करते 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 पर्दे खोल दिए कि नूर क्या है, नूर क्या है। नॉर्मली हम कहते हैं नूर लाइट है, मगर अरबी जबान का जो लफ्ज नूर है उसका ट्रांसलेशन दुनिया में किसी जबान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि नूर के अंदर इंटेलिजेंस है, नूर में अक्ल है, नूर में कुव्वत है, नूर में पावर है, नूर में वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं कि जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हैं। क्यों कि खुदा खुद नूर है, और वो नूर खुदा ताला ने एक स्पार्क की तरह इंसान के अंदर रखा है। इसलिए हमको अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। हकीकत क्या है? जब इंसान को हकीकत का पता लग जाता है तो फिर वो कभी बदलता नहीं, किसी हालत में भी भले मर जाए। मैंने यही छोटी सी मिसाल दी कि अगर आपके सामने छुप के अगर कुछ आपके खाने में थूक डाल देवे या कुछ और पॉइजन डाल देवे और आपने देख लिया तो आप किसी भी कीमत के ऊपर वो नहीं खाओगे। लेकिन अगर कोई आदमी जिस पर आपको भरोसा है और वो कोई चीज लेके आया और उसने उसके अंदर जहर डाल दी हुई है, आपको बिल्कुल पता नहीं है और आप खा रहे हो, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हकीकत आपसे छुप गई, हकीकत का पता न लगा। एक और छोटी सी मिसाल दूं आपको ये समझने के लिए कि मेरा मतलब हकीकत से क्या है। दलीलें तो बहुत हो सकती हैं। एक बहादुर पक्का इस्माइली कानपुर के अंदर चमड़े की दुकान उसकी, बाद में तो बड़ा मशहूर आदमी बना, मैं आपको कहूंगा। उसकी फैमिली का सबसे बड़ा ये उसूल था कि सूरज इधर से उधर चला जाए, जमात खाना न छूटे। शाम को 6 बजे दुकान बंद कर रहा था। आगरा का एक व्यापारी, आगरा में बूट बहुत बनते हैं, सारे हिंदुस्तान की बूटों की जो इंडस्ट्रीज है वो आगरा में है, मगर आगरा में चमड़ा नहीं होता, कानपुर में चमड़ा बहुत है। आगरा का एक व्यापारी कानपुर आया और उसका इरादा ये था कि शाम के वक्त वो अपना बिजनेस वगैरह ऑर्डर दे देवे तो रात को 12 बजे की गाड़ी में वो वापस चले जाएंगे। 2 से 3 घंटे का वो सफर है। लड़ाई का जमाना था, 1939 में लड़ाई लगी, और ये मैं बात करता हूँ 40 के एंड, यानी तकरीबन साल हो चुका था, चीजें महंगी हो रही थी। 6 बजे ये भाई इस्माइली अपनी दुकान बंद कर रहा था और वो व्यापारी आया, कहता है मुझे 2-2.5 लाख रुपए का माल चाहिए। उसने कहा खुशी के साथ, लेकिन कल सुबह आना। कहता मैं कल नहीं आऊंगा, मैं रात को वापस जाता हूँ। कहता है कुछ भी करो, मैं अभी दुकान खुली नहीं रख सकता। रिक्की किया। इस आदमी ने सोचा 2-2.5 लाख रुपए का मैं इसको
व्यापार देता हूँ, और ये ऐसा बद दिमाग आदमी है, प्राउड है कि इसकी परवाह भी नहीं, उसको गुस्से होकर चला गया। इसने तो दुकान बंद की, घर आया, नहाया धोया, चाय वगैरह पी, सारा घर जमत खाने गया। दूसरे दिन सुबह जब इसने 8, सवा 8 बजे दुकान खोलने के लिए दुकान पे आया तो वो रात वाला आदमी इसकी दुकान पे बैठा। उसको देख के पूछा, क्या सर क्या हुआ? मुंह बना के कहता है, सारा गांव घूमा हूं, कहीं सौदा बन नहीं सका। चलो दुकान खुली, सौदा वगैरह हुआ, लिखा गया सब कुछ। आहिस्ता से पूछता है, भला कल क्यों तुम 6 बजे चले गए, इतना बहुत व्यापार छोड़ दिया? उसने कहा कि मैं इबादत के लिए जमात खाने गया था। तो तुम इस्माइली हो? कहते हाँ। तो इतना व्यापार तुमने छोड़ दिया, तुम तो नमाज बाद में पढ़ सकते हो। कहता नहीं, हमारा जो वक्त है वो वक्त है, रोजी खुदा देता है। मैं उसको छोड़ के, उसको सलाम करने के लिए, उसने मुझे अपने घर आने के लिए वक्त दिया, उसको छोड़ के तेरे 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर मैं करूं, वो जाएगा तो मुझे करोड़ों दे देगा। उसने कहा तुम सच कहते हो। उसके बाद वो कभी किसी दूसरे की दुकान पे नहीं गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के हुजूर में एक आदमी ने मेहमानी रखी हुई थी। कहते खुदावन व्यापार अच्छा नहीं है। मौला कहते हैं जमात खाने जाते हो, नजर नीचे हो गई। कहते मौला शाम को ग्राहकी ज्यादा होती है, 10 वन देते हो? कहते मौला जितनी बन सकती है देता हूँ, लेकिन जो 10 वंदी आदमी होता ना वो बहादुर होता है। हाँ खुदावन तेरी मेहरबानी से 10 वन देता हूँ, इंसान भूल चुका। मगर बहादुरी का कहना और होता है, झूठे का कहना और होता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी लकड़ी उठाई, नीचे से पकड़ के वो जो ऊपर की जो लूप है उसके गर्दन में डाली और मामा फरमाया रोज जमा खाने जाओ, 10 वन बराबर दो, अमा हम ग्राहक को पकड़ के, यानी गर्दन में जिस तरह मैं ये लकड़ी डाल रहा हूं, हम ग्राहक को खींच के तुम्हारे पास लाएंगे। पांव पड़ा और माफी मांगी। वो देखो शाम को ग्राहक को उसने निकाल दिया, चले जाओ, मैं अपनी दुआ अपना जमा खाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुबह जब दुकान खोलने गया तो वो पहले से बैठ गया। ये हकीकत की समझ है। वो आदमी जो बाद में वारस इस्माइल जीवा कानपुर वाले के नाम से मशहूर हुआ, वो चमड़े का व्यापारी इस हकीकत को समझ गया था कि दुनिया तो 4 दिन की है, पैसा भी 4 दिन का है। मौला के हुजूर में मैं पहुंचूं, ये सच्चाई, ये रियलिटी जब समझ में आ जाती है तो फिर इंसान के सामने तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, इवेपर हो जाती है। हकीकत की समझ आनी चाहिए। इस्लामी मजहब का ये एसेंस है, बातुनियत। हम लोग जाहिर में भी इबादत बंदगी करते हैं, लेकिन दीनदारों हम लोग ज्यादा बातुनी हैं। अगर मैं परसेंटेज बनाना चाहूँ, मैं परसेंटेज नहीं कह रहा, सच्ची बात नहीं है ये, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर इस्लामी मजहब की जाहिरी हकीकत और बातुनी हकीकत की मैं परसेंटेज बनाऊं तो 90% हमारा मजहब जो है वो बातुनी है और 10% जाहिरी है। जाहिर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना बातुनी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हर जाहिर का एक बातुन है, लेकिन हर बातुन का जाहिर नहीं। एवरी जाहिर, whatever is in appearance, it has something which is not in appearance, which is hidden. ये जो छुपी हुई चीज है ये बातुन है, ये जो छुपी हुई चीज है वो हकीकत है, ये जो छुपी हुई चीज है यही खुदा है, जो जाहिर में हमको नजर नहीं आता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के हुजूर में कुछ नए इस्माइली जो हिंदुओं में से कन्वर्ट हुए थे 1922, 3 और 4, 3 बरस हिंदुस्तान के अंदर एक जबरदस्त तूफान था, और यह तूफान था आर्य समाज का।
इन्होंने शुद्धि की मूवमेंट चालू की और हिसाब बिगर मुसलमानों के पीछे पड़े, लेकिन मुसलमानों को कन्वर्ट कर न सके। तो इन्होंने क्या किया कि जो डिप्रेस क्लास के लोग थे ना, भंगी चमार वगैरह, इन लोगों को इन्होंने यानी हिंदू बनाना शुरू किया। और आपको अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा तो उसको पता होगा कि महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का पेपर शुरू किया हुआ था। और हरिजन यानी मेन ऑफ गॉड, ये हरिजन एक्चुअली उसने इन हिंदुओं को कि जो कन्वर्ट हुए थे यानी भंगियों से और दूसरों में से, उनको ये हरिजन कहता था। हमारे विरुद्ध भी, इस्माइली मजहब के विरुद्ध भी इस शुद्धि के अंदर बहुत कुछ हिलचाल हुई, जिसको मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं। तो मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने 3 मिशनरी अपॉइंट किए और इनको हुक्म किया कि तुम इधर गुजरात के एरिया में, कि जहाँ ये लो क्लास के लोग बहुत है और हिंदू लोग कास्ट सिस्टम के हिसाब से उसको हेट करते हैं, नजदीक भी नहीं आने देते, वहाँ जाके अपना मिशन का काम करो। इन 3 आदमियों में एक मेरे फादर इन लॉ थे मिशनरी मोहम्मद मुराद अली, एक थे अली भाई दाया कि जिसका पोतरा अब्दुल भाई इधर की सुमू में है, और तीसरे आदमी शहीद खुदा बख्श थे। खुदा बख्श को पॉइजन दी गई थी मगर इमाम ने उसको बचा लिया। तो तकरीबन 3200 आदमियों को इस्माइली मजहब में कन्वर्ट किया गया। उसमें एक आदमी ऐसा था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, सिंसियर था। वो कहता है मुझे इस्माइली मजहब में आने से कोई एतराज नहीं, शर्त यह है आप लोग मिशनरी लोग ये कहते हो कि रामकृष्ण का जो भी नूर था, लाइफ थी, वो आगा खान के अंदर है और यही नकलंकी अवतार है, तो मुझे उसका सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, मुंह की बातें नहीं चाहिए। अभी हमारे मिशनरी चुप हो गए, भाई तुम्हें क्या सबूत चाहिए? कहता मैं आंख से देखना चाहता हूं। अच्छा, मौला के हुजूर में अर्ज की गई कि खुदावंद एक आदमी है, वो ऐसी बात कहता है कि मैं मानूंगा तब जब मैं अपनी आंखों से देख लूं। तो फरमाया बोला उसका। मौला के बंगले पे अरेंजमेंट किया गया, इसको लेके गए। मौला को इसने देखा, दंडवत करके, दंडवत यानी जमीन के ऊपर ऊंधा सो गया लंबे हाथ करके, इसको दंडवत कहते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड सबमिशन। दंडवत करके फिर खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के मौला के सामने बैठ गया। इसको असर जरूर पड़ा। कहता है भगवान, अब आगा खान निकल गया, लफ्ज भगवान आ गया। कहते भगवान महाराज, ये लोग कहते हैं कि आप राम और कृष्ण का नूर यानी लाइट हो, उसकी जोत हो। माँ बाप कहा हाँ, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो फिर हाथ बांध के कहता है तो मुझे इसका कोई प्रूफ मिल सकेगा, क्या चाहिए? कहता है भगवान कृष्ण की जो वो गोपियों को जी लीला थी, मुझे वो दिखाओ। सुल्तान मोहम्मद शाह हंसने लगे, उसकी आंखों में आंखें डाली। 1 मिनट हुआ, ज़ारो कतार आंखों से पानी निकलने लगा। मौला के कदमों पे गिरा, कहता है आप मुझे स्वीकार करो, इस्माइली बन गया। बहुत वर्षों तक मोरोगोरो में उसने टीचिंग भी की। जाफर अली पीरानी उसका नाम रखा गया, पीरानी तो उसकी फैमिली का नाम था। अब उसने, वो बाद में कहता है कि मैंने इसको कृष्ण के रूप में मुरली बजाते और गोपियों के साथ लीला रचते हुए मैंने आंखों से देखा है, लेकिन बाकी जो वो मिशनरीज और स्टाफ खड़े थे उनको तो कुछ नजर न आया। हर शख्स एक इंडिविजुअल एंटिटी है, हर शख्स एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। खुदा ताला ने कैपिटल हर सब कुछ दिया है। काफिर भी अगरचे वो खुदा को नहीं मानता, लेकिन खुदा ने उसको भी वो एक स्पार्क दी हुई है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, सब में है। कोई उसके ऊपर राख डाल देते हैं, छुप जाती है। वो मछली मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, लेकिन राख डालने से छुप जाती है। हकीकत का जब पता लग, कोई उसके ऊपर राख डाल देते हैं, छुप जाती है। वो मछली मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं,
لیکن راکھ ڈالنے سے چھپ جاتی ہے. حقیقت کا جب پتہ لگتا ہے تو اس راکھ کو ہٹا دو, تھوڑی سی پھونک مارو گے, وہ اسپارک پھر گلو ہو جائے گی. ہمارے دل کے اندر وہ سب کچھ ہے. ہم نے اسماعیلی مذہب کو آج تک سمجھا ہی نہیں. ہمیں اس بات کا کچھ پتا نہیں کہ جماعت خانہ کیا ہے, ہمیں اس بات کا کچھ پتا نہیں ہے کہ بندگی کیا ہے, ہمیں اس بات کا کچھ پتا نہیں کہ امام کون اور کیا ہے, ہمیں اس بات کا کچھ پتا نہیں کہ بیت الخیال کیا ہے. دینداروں, میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا. مولانا حاضر امام ادھر بیٹھا ہے, وہ میری باتیں سن رہا ہے, میں اس کو حاضر ناظر دیکھ رہا ہوں. میں حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی اسماعیلی ایسا ہے کہ جس نے آرام سے کونے میں بیٹھ کے ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے سوچ وچار کی ہوئی ہے. اور یہ انہیں کو پتہ ملتا ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. گندا گلاس ہوئے, گندا ہوئے, اس میں پانی پئیں گے. چلو گلاس بہت کلین ہے لیکن پانی گندا ہے, پئیں گے؟ ہم کو دونوں چیزیں کلین چاہیے, گلاس بھی کلین چاہیے, پانی بھی کلین چاہیے. اس وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بتیاں بھی ہیں, ہماری آنکھوں میں نور بھی ہے. آنکھیں بند کر لو تو کچھ نہیں دکھتا, لیکن بتیاں بند کر دو, آنکھیں کھولو تو بھی کچھ نہیں دکھے گا. دونوں چیزیں چاہیے, بتیاں بھی چاہیے, آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے, تب جا کے ہم کو حقیقت ملتی ہے. ظاہری عمل بھی چاہیے, باطنی عمل بھی چاہیے. اس لیے بہت ضروری چیز یہ ہے مذہب کے اندر کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں, ہماری عادتیں اچھی ہوں, ہمارے وچار اچھے ہوں, تب جا کے ہم کو اس ایسنس کا پتہ چلے گا کہ جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. حقیقت خدا خود ہے, کیونکہ اس سے بڑی ریالٹی کوئی کچھ نہیں. گندے وچار ہیں, بھونڈے اعمال ہیں, دل میں حسد ہے, اندر کا آئینہ گندا ہے, روشنی کیا دکھے گی, منہ کیا دکھے گا. عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عبادت تو دینداروں یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو کلین کریں. یالی کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اگر اندر کلین نہیں تو یالی کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یالی کے نام کا فائدہ ضرور ہوگا. کیوں کہ یہ ایسی ریالٹی ہے کہ ہیرا ہی ہے, بھلے آپ اس کو کیچڑ میں پھینک دو, باہر نکالو گے, اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. علی کا نام ایسا ہے. لیکن اگر اسی ہیرے کو ہم صاف کلین کر کے مخمل کی ایک ڈبیا میں پیش کریں تو اس وقت اس کا جلوہ کچھ اور ہے. ہمارے اندر وہ ہیرا موجود ہے, لیکن ہم نے اس ہیرے کو پھینک رکھا ہوا ہے, ڈسٹ میں پڑا ہوا ہے, ہمیں اس کی کوئی قیمت کا پتہ چلتا نہیں. انتکرن میں جہاں خدا کی کرسی اور عرش ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ, مومن کا جو قلب ہے, دل ہے, وہ خدا کا عرش ہے. عرش کہتے ہیں تخت کو, لیکن ہم نے خدا کی اس کرسی کے اوپر مال و دولت, دنیا کی بدیاں برائیاں, گریڈ, تیری میری, حسد, نندا رکھ چھوڑا ہے. اب اس کرسی کے اوپر وہ خالی ہوگا تو مولا آ کے بیٹھے نا. اس کرسی میں سے یہ مال کا پیار, دنیا کا پیار, خوبصورتی کا پیار, عزت آبرو کا پیار, جو کچھ بھی دنیا کے اندر بدیاں برائیاں اور اچھیاں نیکیاں سب ہم نے کھچڑا پکا کے اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے. مولا کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں, مولا کہاں کے بیٹھے. اندر صاف ہونا چاہیے, کلین ہونا چاہیے. اسلام پھیل گیا, عربوں نے اسلام کو میجورٹی نے قبول کر لیا. ایک آدمی مکہ میں رہتا تھا, نبی کریم کے پاس سے جب وہ واپس آیا تو اس کی دنیا پلٹ گئی تھی. خانہ کعبہ میں روز جا کے وہ عبادت کرے, نمازیں بھی پڑھے, اور نمازوں کے بعد بیٹھ کے وہ خدا کا دھیان لگایا کرے. اس طرح سے بیٹھ جاوے. خانہ کعبہ کے اندر ہزاروں کبوتر اس وقت بھی تھے, آج بھی ہے. آج جو کبوتر ہیں کہتے ہیں کہ وہ اسی کی نسل میں سے اترے ہیں, کیونکہ وہاں کبوتر کو مارنے کی اجازت نہیں. یہ وہی نسل میں سے ہیں کہ جو نبی کریم کے زمانے سے کبوتر تھے. تو یہ کبوتر اڑتے 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 اس کے کندھے پہ بیٹھ جاویں, اس کے سر کے اوپر بیٹھ جاویں, اس کو پتھر کی مورتی سمجھ کر بیٹھ جاتے تھے. اب وہ کیسا موشن لیس بیٹھا ہوگا.
घंटों निकल जाते थे, खुदा के ध्यान में पड़े रहते थे। हमारा ध्यान तो 5 मिनट भी नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि हमने ध्यान लगाने की कोशिश भी नहीं की, और ध्यान लगाने का जो प्रोसेस है और तरीका है वो भी हमें मालूम नहीं। मौला के पास गए, लेके आए, एक बोल लेके बैठ गए, चलो हमारा प्रॉमिस, हमारा वादा। भाई किसने आपको कहा कि जाके मौला के पास बोल लो? किसने कहा? और अगर गए हो तो फिर उसके ऊपर अमल नहीं। हम इंसान हैं मोमिनो, और अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान वो होते हैं कि जो प्रॉमिस पालते हैं। प्रॉमिस को तोड़ देना बुरे आदमियों की निशानी है, डिसऑनेस्टी है ये। और ऑनेस्ट बनना ईमान का एक हिस्सा है, एक भाग है। जो आदमी अपनी जबान का पास नहीं करता वो आदमी लिख के भी फिर जाएगा, मगर जो आदमी अपनी जबान का पास करता है वो गर्दन कट जाएगी मगर अपनी जबान से नहीं फिरेगा। ये ईमान की एक निशानी है, क्योंकि उस आदमी ने हकीकत को मालूम कर लिया है कि सच्चाई सच्चाई है। वो किसी भी कीमत के ऊपर गलत नहीं करेगा और किसी भी कीमत के ऊपर वो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो जाए। आला दर्जे का कैरेक्टर, प्योर और क्लीन थिंकिंग, अंदर और बाहर सफाई। उस आदमी को जब खुदा याद आता है तो खुदा उसको याद करता है। वो खुदा में है, खुदा उसमें है। जिस तरह मच्छी पानी में रहती है और पानी मच्छी के अंदर भी है, मच्छी भी पानी के अंदर है। इसी तरह से खुदा ने कहा कि तमाम जितने भी 7 आसमान जमीनें हैं वो सब मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं उनके अंदर हूँ। वो माफी हिन्ना वो माँ बहन हुन्ना, जमीन आसमान के अंदर मैं सब जगह हूँ, रचा हुआ, लेकिन सारे जमीन आसमान मेरे अंदर भी है। यानी वही हिसाब है कि मछली पानी में भी है, पानी मछली में भी है। ये ओतप्रोत हो जाना, इस हकीकत को अपने दिल के अंदर समझना और इसका एसेंस ले लेना, ये इस्माइली मजहब की बातूनी तरीके की चीज है। हमारे वो बड़े बड़े महान आदमी हजरत इमाम के फरमान पढ़ो, मैं वो फरमाया पहले हमारे लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए इसलिए कि वो इबादत किया करते थे। इबादत करने से उन्हें कुव्वत मिलती थी, जाहिर की कुव्वत भी मिलती थी, बातनी कुव्वत भी मिलती थी। दीनदारों, जब इंसान की जो साइकोलॉजी है, जब इंसान की थिंकिंग है, जब इंसान की खुद की जो विचार शक्ति है, जब ये गोड़ मोड़ भेड़ सेल वाली हो जाती है, स्ट्रेट और प्योर नहीं होती, तो उसका शरीर भी खराब हो जाता है, मानस भी खराब होता है। आत्मा यूं तो प्योर है लेकिन ढकी जाती है। तंदुरुस्ती के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हमारे अमाल अच्छे हों। बद अमाल करने वाले की तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होती। बद अमाल में बहुत सी चीजें हैं, खाना पीना भी बदअमाली में आता है, सोना भी बदअमाली में आता है, किस तरह हम दूसरों से मिलते हैं ये भी बदअमाली में है। दिल के अंदर हसद है, मुंह पे हंस रहे हैं, हम किसी को मिलते हैं, किसी को हम हेट करते हैं, लेकिन मुंह पे हंस रहे हैं, दिल के अंदर मैल है उसके लिए। तो ये तो हकीकत ना हुई ना, डुअलिटी हो गई। एक आदमी झूठ बोल रहा है, अब उसको माइंड के अंदर ये बात है कि सच बात नहीं कह रहा, जबान झूठ बोल रही है, लेकिन माइंड में सच्ची हकीकत मौजूद है। इसलिए उस आदमी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, जो आदमी झूठ बोलने की आदत डाल लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी के माइंड के अंदर थिंकिंग पावर में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता डुअल माइंडेड बन जाता है, इंडिसाइसिव बन जाता है। उसको ये पता नहीं लगता कि क्या करूं क्या न करूं, घबरा जाता है। कोई ऐसी चीज उसके सामने इंपॉर्टेंट आ जाती है तो उसको पता नहीं लगता मैं ये करूं कि ये करूं। फिर किसी को पूछता है कि भला मैं क्या करूं। अब वो आदमी जो इससे कोई साफ दिल वाला हुआ तो ठीक है, अच्छा रास्ता बता दिया, मगर और भी गड़बड़ हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके माइंड के अंदर डुअलिटी आ गई, रियलिटी नहीं रही, हकीकत नहीं रही, सच्चाई नहीं रही, डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलता है, बदिया करता है, इसके लिए जाहिर में अच्छा बनता है लेकिन अंदर गंदा है। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हुजूर में एक बहुत बड़ा सूफी था उस जमाने का, मैं नाम दूं उसका नाम, उसको थौरी कहते हैं, सुलेमान थौरी। एक दिन फटा पुराना जब्बा पहन के मौला के पास आया।
اس دن مولا نے ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا. مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ رسول اللہ کے اولاد ہو, اس کے فرزند ہو کے ایسے آپ ریشم کے کپڑے پہنتے ہو, یہ تو صوفی مذہب کے خلاف ہے. امام آگے بڑھے اور اس کا جبہ جب کھولا تو اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور باہر پھٹا ہوا کپڑا پہنا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. حضور نے اپنا جبہ کھولا کہ دیکھو اندر بھی وہی ہے باہر بھی وہی ہے. حقیقت یہ ہے, اندر بھی وہی باہر بھی وہی. سچائی اور ریالٹی اسماعیلی مذہب کا ایسنس یہ ہے, اندر بھی وہی باہر بھی وہی. سچائی اور ریالٹی کے اوپر, حقیقت کے اوپر, خدا کے نور کو اپنی زندگی کا ایم بنا کے اگر ہم چلیں تو پھر صدر دین کے حسن کبیر دین دونوں باپ بیٹے نے یہ گنان رچا. حق سو حقیقت, حق یعنی خدا تعالی. حق کے ساتھ جس آدمی نے حقیقت کی کمائی کی, اس دل بھیتر ہوئی روشنائی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے لے, حقیقتی سمجھ دے لے. مولا آپ کے اوپر راضی رہے, علم و حکمت کی برکتیں اور نوازشیں دے لے, دین کے سمجھنے کی توفیق دے لے, دین و دنیا میں اپنی فرمان برداری کرنے کی طاقت دے لے. مولانا حضرت امام اپنی قربت میں اپنے نزدیک رکھے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر, آپ کی اعلی اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی رہے, خوشیاں برکتیں دے لے. مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.